So, welcome to the Success Story series CAT 2025. We have Vivek Prajapati with us today, one of the sincere aspirants who prepared at Career Launcher Baroda. So, welcome Vivek. First of all, आप बताइए कि कौन कौन से कॉलेजेस से कॉल्स थे, कौन से कन्वर्ट हुए, एंड फाइनली आप कौन सा बी स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, सो मेरे पास निरमा का कॉल था, एक कीरमा का था, देन IMT, then Great Lakes and IFMR. A lot of them. So I converted all of them, Wow. and I discussed with my parents and also with you sir and also with Vivek sir also, and I decided to join Nirma University. And what specialization are you hinting or looking at? So I am looking for MBA in finance. Fair enough. To start with, if you can talk us through your journey, how was your experience preparing with us at CL? So I joined CL in mid-year in May or June. So the faculty was really good in CL. The Nikun sir, Bhavin sir is very helping in LRDI and bonds. They are also helping in mocks, like how mock taking strategies and how you can analyze after the mocks. And Vivek sir also helped me a lot during my B school selecting, like which they helped me in choosing the college. And also Hardik sir also helped me in mock preparation. They arranged faculty to take us mock PIs in CL also. So it was a really good journey. So let us take things one at a time. सबसे पहले तो if you say mocks were helpful, आप शेयर करना चाहोगे आपका इंडिविजुअल टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या था? ओके, सो मेरा इंडिविजुअल टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी था कि मैं इंग्लिश पे मैं ऐसा ज़्यादा अटैम्प्ट करने की सोचता था कि जिससे मेरा स्कोर अच्छा बने. एंड LRDI में पूरे सेट्स में स्कैन करता था, उसमें फिर मैं चूज़ करता था कि कौन सा पहले मेरे को चूज़ करना चाहिए जिससे मेरे पास हार्ड वाले के लिए ज़्यादा टाइम बचे पाए. एंड कॉन्स में भी सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करता था कि जैसे जो क्वेश्चंस मेरे जोन के हैं तो मैं उन्हें पहले चूज़ करूँगा ताकि मैं उन्हें पहले सॉल्व कर पाऊँ. एंड फिर ऐसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वाले क्वेश्चंस ऐसे उनको फिर मैं मार्क करके फिर उनको मैं सॉल्व करने जाता हूँ. गुड. इट एम्फसाइजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हम सुनते हैं कैट इज टफ, सीनियर्स बताते हैं कि क्वांट के अंदर डेप्थ है, दिस दैट, बट द वे ही मेंशन्ड इट्स अ बुफे. देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन इफ यू आर एबल टू pinpointly select the questions that you want to attempt. So हो सकता है मेरे लिए कोई question tough हो जो आपके लिए easy हो, right? But to focus on accuracy, if you pick your questions well, you can definitely score well in your mocks. And then the actual CAT itself. Secondly, when you said Vivek sir helped you with choosing the right college, yeah, even Bhavin sir helped you with LRDI, this that. क्लास अटेंड करते वक्त आपका स्केड्यूल क्या था? जैसे अगर फाइनल ईयर के दौरान प्रिपेयर किया या आफ्टर कॉलेज कंप्लीशन प्रिपेयर किया, आपका लॉजिस्टिक्स क्या था? मैंने बीटेक मैंने किया था कंप्यूटर से, तो मैंने फाइनल ईयर ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था कैट के लिए. तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था तो कॉलेज में इतना कुछ होता नहीं था, तो मैं स्टार्टिंग सुबह ही आ जाता था यहाँ पे. तो स्टार्टिंग से मैं लाइब्रेरी में मॉक्स एनालिसिस एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था एंड फिर देन क्लासेस भी अटेंड करता था रेगुलर. Good. So were the CL resources good enough, whether you talk about funda books या online mocks या फिर individual doubt clearing, या आपने जैसे external faculty ने जो mock लिया उसका जिक्र किया, तो was that comprehensive या कहीं आपको उसमें gap लगा? No sir, I think the resources were really good because they given me a lots of resources, like they given me handbooks there, उसमें बहुत सारे questions थे एंड वर्कशीट भी उन्होंने प्रोवाइड की थी, उससे भी बहुत हेल्पफुल हुआ था क्योंकि उसमें ऐसे मेंशन भी किया हुआ था कि प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस एंड वो सब भी थे. एंड मॉक्स में भी हमको प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स के मॉक्स अवेलेबल थे, तो उससे मुझे बहुत सारा हेल्प हुआ. Great. Last but not the least, we have this habit of conducting mocks at neutral venues as well. If you happen to give that mock, can you talk about that experience? Is it different from what you do it at the center or at home, or whether it was helpful or not? Yes sir, it is different
लाइक मैं जब घर से मॉक्स देता था तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता था जैसा एक्चुअल कैट में होता है। तो जब मैंने न्यूट्रल वेन्यू पे मॉक दिया तो मुझे पूरा अलग ही ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कि घर पे मैं ऐसे आराम से मॉक देता था, यहाँ पे एक्चुअल एनवायरनमेंट का फील हुआ मेरे को, जैसे कि कैट एग्ज़ाम में होता है, एक सुपरवाइज़र है एंड कोई आपको देख रहा है, जैसे सुपरवाइज कर रहा है, तो उससे थोड़ा एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है आपको। तो एक जैसे हम एक्चुअल कैट से पहले ये न्यूट्रल वेन्यू वाला मॉक देते हैं तो उससे हम बहुत ऐसे हमारा एक अंदर का फियर निकल जाता है एग्ज़ाम। True. I'm glad that helped. Any suggestions, any inputs that you would want to give to your juniors? सो मैं तो यही इनपुट देना चाहूँगा कि कैट इज़ नॉट दैट टफ एग्ज़ाम। आप अगर सही क्वेश्चंस और सही स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे तो कैट बहुत इजी एग्ज़ाम है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो एंड थोड़ा अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो और उस पर भरोसा करो। एंड स्ट्रेस लोगे तो फिर काम थोड़ा ख़राब हो जाता है, एंड स्ट्रेस नहीं लोगे तो सब सही होता है। Good. Any fond memory, any particular instance that you can recollect, whether formal, whether informal, with any faculty, staff member जो आप mention करना चाहो? सो लाइक मैंने आप पहले भी मेंशन किया विवेक सर का, तो उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं क्योंकि मैं उनको रात को 11 बजे भी फ़ोन कर देता था। मेरे अंदर कन्फ्यूजन होता था कि क्योंकि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस थे तो मैं बहुत ऐसे कंफ्यूज रहता था कि कौन सा कॉलेज में चूज़ करूँ। तो वो ऐसे बिल्कुल भी मेरे इरिटेशन जैसा उनको फील नहीं होता था, वो मेरे को एकदम शांति से समझाते थे, भले रात के 11 बजे मैं उन्हें फ़ोन करूँ। तो उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी वो मेमोरीज़ हैं क्योंकि उन्होंने मेरी कॉलेज चूज़ करने में काफ़ी हेल्प किया। और फिर वो अपने पास्ट स्टूडेंट्स का भी मेरे को नंबर देते थे कि आपको अगर ऐसा डाउट है तो आप इनसे भी बात कर सकते हो, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। That's where we make some real difference, right? Yes. Thank you for joining us today. Once again, very happy to see you succeed. Good luck with your MBA and future. थैंक यू सर। Thank you.